मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, मैं डायरैक्टर हाँ मैडिकल अंकोलॉजी ਤੇ ਹੀਮੈਟੋ ਅੰਕੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਕਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅੰਕੋਲॉजी ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਅੰਕੋਲॉजी ਕਾਨਫਰੰਸ। ਸੋ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਿਕੁਐਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜੀਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ। ਪ੍ਰੈਸੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਐਕੂਰੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚੁਣੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਦਵਾਈ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ। सो ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें लगभग 150 कैंसर स्पेशलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरे कंट्री से हैं। हमारे डेलीगेट्स बेंगलोर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, मुंबई, दिल्ली और जयपुर, तो कई शहरों से जो टॉप स्पेशलिस्ट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने जो नॉलेज है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और तो इस तरह से ऐसे फोरम में हम ये सारी डिस्कशन करके एक तो जो नॉलेज का जो आदान प्रदान हो रहा है उससे ये जानकारी हासिल होती है कि हम और अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमारे पेशेंट्स के लिए और फ़ायदेमंद को कैसे बनाया जा सकता है। तो इस तरह की नॉलेज शेयरिंग हो रही है। ये आज का दिन है, 12 अगस्त और 13 अगस्त को भी कर रहे हैं। और इसमें हमने स्पेशली जो बच्चों के कैंसर का भी एक अलग से एजेंडा रखा है, बिकॉज चाइल्डहुड कैंसर भी एक विषय है जिस पे नॉलेज शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। और वुमेन कैंसर पे हम अलग से इसमें एक कल जो है फर्स्ट हाफ में ये डिस्कस कर रहे हैं कि वुमेन कैंसर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। हेरिडिटरी कैंसर्स हैं उसमें उसके बारे में भी एक पैनल डिस्कशन है कि उसमें कब उसके टेस्ट होने चाहिए, कैसे हम उसको उसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, हेरिडिटरी जो कैंसर्स हो रहे हैं उनको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, और स्पेशली जो टेस्ट करके उन टेस्ट का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे दवाइयों का चुनाव करना है, उस विषय में बहुत सारे हमारे सेशंस हैं। कैंसर सर अभी भी हवा बना हुआ है, लोगों को पता नहीं चलता है या सेकेंडरी एंड टर्शरी स्टेज में आकर के। बिल्कुल। तो लोग को आप किस तरह से सजेस्ट करेंगे कि दे विल कम एंड जांच का क्या प्रोविजन है, या कैसे पता लगे कि उनको कैंसर? सो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सो कैंसर, कोई भी कैंसर जो है वो पहली दूसरी स्टेज में क्योरेबल है, अर्ली स्टेज में क्योरेबल है। स्टेज एडवांस होने से समस्या है कि क्योर रेट्स कम हो जाते हैं, स्पेशली जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज में कैंसर जो है चौथी स्टेज में क्योर नहीं हो पाते हैं। तो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो जिनको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, वो टेस्ट करके कैंसर को बहुत उसकी अर्लीस्ट स्टेज में पता कर सकते हैं। जैसे कि जो सर्विक्स कैंसर है, बच्चेदानी के जो मुंह का कैंसर है, उसको एक पैप स्मीयर या HPV DNA टेस्ट है, उससे हम जल्दी उसको पता कर सकते हैं। इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA का टेस्ट है,
एक आंत का कैंसर है, उसको हम दूरबीन की जांच जैसे कोलोनोस्कोपी है उससे हम जल्दी उसको पता कर लेते हैं। और हमारे देश में जो मुंह और गले के कैंसर्स हैं, बिकॉज़ तंबाकू का इस्तेमाल बहुत है, चबाने वाला तंबाकू, स्मोकिंग और बीड़ी सिगरेट, इस सब के इस्तेमाल की वजह से लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर जो है, और ये कैंसर्स काफ़ी कॉमन है। इस तरह के कैंसर्स को मुंह और गले की जांच करके भी जल्दी जो है उसका जो है डायग्नोस कर सकते हैं, और जितना जल्दी डायग्नोस करेंगे उतना ही पेशेंट के लिए अच्छा है। बट इस सबसे ज़्यादा भी जो एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंसर्स की देखो ट्रीटमेंट मुश्किल है, ट्रीटमेंट मुश्किल है, पेशेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इतना आसान नहीं है ये। पर रोकथाम जो है वो अगर और की जा सके तो हम बहुत से कैंसर्स को होने से ही मतलब बचा सकते हैं। जैसे कि तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं, अब तंबाकू के प्रोडक्ट्स का सेवन ही ना करें तो वो वाले कैंसर्स ही नहीं होंगे। ये तो बहुत एक सिंपल सी बात है, बट ये एक बहुत बड़ी जो है समस्या है। इसके लिए तो बहुत मतलब गवर्नमेंट लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे बहुत एफर्ट्स चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग जो है, सिगरेट बीड़ी की स्मोकिंग और तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसका सेवन ही मतलब आधी लड़ाई तो हम इसको रोक से ही जीत सकते हैं। फिर तो इलाज करने तक को तो पहुंचने की ज़रूरत नहीं है ना, जब कैंसर ही नहीं होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट चाहिए कि इन चीज़ों का इस्तेमाल ही हम बंद कर दें। तो उसके लिए आप आपका जो मीडिया के थ्रू और जो न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, सबके थ्रू आप भी एक सोशल मैसेज सबको पहुंचाएं कि हमें तंबाकू के चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सबसे बड़ी कैंसर की जो एक सिंगल इम्पॉर्टेंट कॉज तो तंबाकू है, और तंबाकू से जुड़े सारे पदार्थ हैं, उसको बंद करवाइए, इलाज तो बाद में आएगा। 2-3 टाइप के ऐसे कैंसर हैं सर जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, सर्विक्स कैंसर हो, आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि किस किस टाइप्स के कैंसर को हम आइडेंटिफाई नॉर्मल कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे कैंसर हैं जिसको नहीं किया जा सकता है। सो जो कैंसर्स हैं उसके कुछ लक्षण हैं, और अगर उसको जल्दी उसको पकड़ना है, अब हमारे पास बहुत पेशेंट्स हैं जो लेट स्टेजेस में पहुंचते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं। जो भी लक्षण आ रहे हैं, लक्षण चल रहे हैं, बट उसकी वो जांच नहीं करवा रहे हैं जल्दी। तो कैंसर के कुछ लक्षण हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं कि ब्रेस्ट में गांठ आना, या जो स्तन की जो चमड़ी है उस पर कुछ चेंजेस आना, निपल का अंदर धंस जाना, एक्जिला में यानी बगल में कुछ गांठ का आ जाना, ये उसके लक्षण हो सकते हैं। तो कई महिलाएं जो हैं अपने टेस्ट ही नहीं करवाती हैं, वो सोचती हैं कि टेस्ट करवाने से कुछ फैल ना जाए, कुछ और समस्या ना खड़ी हो जाए, तो उससे भी लोग जो है परहेज़ करते हैं। तो ये गलत धारणाएं बनी हुई हैं कि टेस्ट करवाने से ही कुछ नुकसान हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो उनको चाहिए कि वो सामने आएँ, अपने डॉक्टर से जांच करवाएं। बड़ी सिंपल जांच है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में तो एक हल्की सुई की जांच होती है, FNAC बोलते हैं, मैमोग्राफी का टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट है, उनमें ही जल्दी पकड़ा जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1-2 में तो आप समझ लो 90% लोग जो हैं उससे क्योर हो सकते हैं अगर हम जल्दी उसको डायग्नोस कर लेते हैं। इसी तरह जो सर्विक्स कैंसर है उसके लिए एक सिंपल पैप स्मीयर का टेस्ट है, जो कि जो महिला डॉक्टर जो हैं, गायनिकोलॉजी वाले डॉक्टर जो हैं, बड़े आसानी से वो टेस्ट कर लेते हैं, और वो बहुत सस्ता भी है, उसमें कोई ख़ास खर्चा नहीं आता, और बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो बहुत ही कम कॉस्ट में या फ्री भी हो सकता है वो, और उससे बड़ी जल्दी उसको अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो प्रोस्टेट का कैंसर है उसके लिए एक सिंपल PSA का टेस्ट है, जो कि एक ब्लड सैंपल है, वो भी सस्ता टेस्ट है, वो बिल्कुल उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। उससे हम अगर वो PSA का ब्लड टेस्ट हाई है, वो सजेस्ट करता है कि प्रोस्टेट कैंसर होने के अंदेशा है, उसको भी जल्दी डायग्नोस किया जा सकता है। इसके अलावा किसी को भी कोई लक्षण है, जैसे मान लो आवाज़ में बदलाव आ रहा है, आवाज़ बैठ जाती है, तो ये वॉइस बॉक्स का कैंसर हो सकता है। उसके लिए एक गले से हम दूरबीन की जांच करके उसको हम बड़ी आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। कोई भी जख्म अगर ठीक नहीं हो रहा है, मान लो जीभ पे कोई जख्म है, और या गले में खाना फंस रहा है, खाना निगल नहीं पा रहे हैं, उन केसेस में भी जो मुंह की गले की जांच करके उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। खाना फूड पाइप में फंसना, डिस्फेजिया जिसको हम बोलते हैं, कि पेशेंट सॉलिड चीज़ नहीं खा पा रहा है पर लिक्विड चीज़ निकली जा रही है, तो डैट मीन्स फूड पाइप में कहीं ना कहीं रुकावट है। इसको हम एंडोस्कोपी से इसकी जांच कर सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको हम इतना इग्नोर ना करें सिम्टम को कि वो बढ़ते बढ़ते कई महीनों बाद वो स्प्रेड कर जाए।
और इस तरह के मेजॉरिटी के कैंसर जो हैं अर्ली स्टेज में अगर हम डिटेक्ट कर लें, दे आर मतलब बाय एंड लार्ज उनको हम ठीक कर सकते हैं। जो पीठ, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, इस तरह के जो कैंसर्स हैं ये डिफ़िकल्ट कैंसर्स हैं। आम तौर पर हमने देखा है कि जो जैसे गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और ये कैंसर्स हैं ये लेट स्टेजेस में ही पहुंचते हैं। अर्ली स्टेज में एक तो ये इनके सिम्टम्स समझ नहीं आते हैं जल्दी से, और कई बार जो साधारण टेस्ट हैं लाइक अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट हैं वो इनको मिस कर सकते हैं। तो ये टेस्ट हैं जो सीटी स्कैन्स, पेट स्कैन्स जो है ना हायर थोड़े से हमें बड़े टेस्ट करने पड़ते हैं इसके लिए, जिसको हम सरल भाषा में रंगीन एक्सरे बोल देते हैं, सीटी स्कैन जो है। तो उसमें इसको पकड़ना ज़्यादा है, बट वो टेस्ट हर कोई डॉक्टर एकदम से आपको सीटी स्कैन कराने के लिए नहीं बोलेगा। तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जैसे वज़न कम होना, पेट में लगातार दर्द होते रहना, भूख कम हो जाना, इस तरह के लक्षण जो हैं ये पेट और इस तरह के गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो हमें उस तरह से जांच को भी थोड़ा और अधिक जांच उसमें करनी पड़ सकती है। और एक और जो है हमारा जो पैखाने में ब्लड का आना, जो ब्लीडिंग हो जाती है, वो एक रेक्टल कैंसर, जो आंत का जो आखिरी हिस्सा होता है रेक्टम, उसको उसमें से अगर ब्लीडिंग हो, वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। उसको कई बार बवासीर से कंफ्यूज कर देते हैं कि ये तो बवासीर होगी, बवासीर का इलाज चलता रहता है और इतने में वो कैंसर बढ़ जाता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए अगर कहीं से भी कोई ब्लीडिंग है, अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है, उसको हम कुछ एक्स्ट्रा जांच उसकी करें ताकि उसको जल्दी से हम पकड़ सकें।